হুম বাবু, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা দেখছেন WB নিউজ টিভি। একটি খুব খারাপ এই মুহূর্তে একটি সংবাদ আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। একটি প্রেস মিট রয়েছে। পাশাপাশি প্রথমত আমি জানিয়ে রাখি, গত কয়েকদিন আগে 12ই রবিউল আওয়ালের ঠিক একদিন আগে একটা ইন্টারভিউ নিয়েছিলাম আমি, যেই ইন্টারভিউতে মাংস বিতরণ, ঢোল ঢাক পিটানো, একাধিক আমার ত্রুটিপূর্ণ কথাবার্তা ছিল। সেই কথাবার্তার জন্য আমি সমস্ত মুসলিম সমাজের কাছে ক্ষমা চাইছি। আল্লাহর রাস্তে আমাকে ক্ষমা করবেন, এবং আমি চাইবো যে ঠিক আমার মতো ভুল যাতে কোনো ভাই না করে, আর এটাই আমি চাইবো। কিন্তু এর পাশাপাশি আরো চাইবো যে আমরা যেহেতু একজন মুসলমান, মুসলিমকে অবশ্যই আমরা ক্ষমা করে দিব। আমি আপনাদের কাছে প্রত্যেককে, যাদের ব্যথা লেগেছে তাদের কাছে আমি আল্লাহর রাস্তে ক্ষমা চাইছি। সকলকে আরেকবার জানিয়ে রাখি, এই মুহূর্তে কিন্তু চোপড়া তনজিম ফালাউল মুসলিমিনের পক্ষ থেকে একটি প্রেস মিট ডাকা হয়েছে ওই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে। অবশ্যই আপনারা সেদিকেই লক্ষ্য রাখুন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আপনার একটা চ্যানেলের মাধ্যমে লালবাজারের কোন দেওবন্দি মৌলভী সাহেবের একটা বয়ান শোনা গেল। এই জুলুসে মুহাম্মদীর ব্যাপারে সে অনেক খারাপ ভাষা ব্যবহার করেছে, এবং যারা জুলুসে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা পৃথিবীতে উদযাপন করে, তাদেরকে নাকি হারাম কাজ করনেওয়ালা, গুনার কাজ করনেওয়ালা, শরীয়ত অনুযায়ী তাদেরকে মানে ভুল বলা হয়েছে। প্রথমে তো আমি এটা আফসোসের সহিত বলবো যে একজন আলিমকে এটা কিন্তু শোভা দেয় না এসে এভাবে কথাবার্তা করো। সারা পৃথিবীতে আলহামদুলিল্লাহ জশ্নে ঈদে মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামা 12 রবিউল আউয়াল শরীফের এই তারিখে উদযাপন করা হয়, এবং জুলুসে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম বের করা হয়। আর এটা আমাদের নতুন কাজ না, এটা আলহামদুলিল্লাহ 1400 বছর এর ইতিহাসে রয়েছে। হ্যাঁ, যখন কোনো সময় জামানা পরিবর্তন হয়ে থাকে, তো তার মধ্যে একটা জামানা হিসাবে একটা কোনো নয় তরিকা, তো ওই জিনিস তো ওইটাই, কিন্তু হয়তো একটা ভালো করার জন্য, একটা মানে আনন্দ এবং খুশিকে বেশির মানুষের কাছে পৌঁছাবার জন্য একটা তরিকা সে নিয়ে থাকে, যেটা ইসলামের বিরুদ্ধে হয় না। হ্যাঁ, ঢোল বাজা বা ডিজে করা বা নাচ গানা করা, এটা কিন্তু শরীয়ত অনুসারে অবৈধ, জায়েজ নাই। কিন্তু জুলুসে মুহাম্মদী, আগে জানতে হবে যে জুলুস জিনিসটা কি। জুলুস হচ্ছে কিছু মানুষ একত্রিত হয়ে একটা বাজারে বা রাস্তায় হেঁটে যাওয়া। যেরকম আমি আসছিলাম, একটা জানাজা বের হলো, জানাজা আগে তার পিছনে অনেক মুসলমান, সেটাকে তারা কিন্তু জুলুসের মানে একটা সকলই নিয়ে যাচ্ছে, এটাও জুলুস। কিন্তু নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়ার বুকে আসলেন, সবচেয়ে প্রথম জুলুস তো আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলার ফেরেশতাগণ আসমান থেকে ঝান্ডা নিয়ে এসে উদযাপন করেছে। কিতাবের নাম আল মুওয়াহিবুল লাদুনিয়া, বইয়ের নাম সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ। এরকম সিরাত রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে যা বই আমাদের বড় মুহাদ্দিসিনরা, ফুকাহারা, উলামারা লিখেছেন, তাদের মধ্যে বিস্তারিত ভাবে রয়েছে। তো চিন্তা করুন, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার হুকুমে জিবরিল আমিন আলাইহিস সালাম যখন 70,000 ফেরেশতাকে আসমান থেকে নিয়ে এসে একটা ঝান্ডা কাবার ছতের উপরে, একটা পূর্ব দিকে, একটা পশ্চিম দিকে ঝান্ডাটাকে হযরতে জিবরিল আলাইহিস সালাম মানে খাড়া করে দিয়েছেন, তো 70,000 ফেরেশতার জুলুসটা কত বড় হবে? অনেক বড়। তো যখন ফেরেশতাগণের ব্যাপারে জুলুস এটা জায়েজ হয়ে থাকে, তো আমরা নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের ওই জন্ম দিবসে যদি আমরা এই একটা অনেক বড় নিয়ামতের আল্লাহর খুশি উদযাপন করে একটা জুলুস বের করি, তাহলে এটা হারাম হবার, নাজায়েজ হবার কোনো কারণ নেই। যে মৌলভী সাহেব এরকম বয়ান দিয়েছে,
তো তাদেরকে চিন্তা ভাবনা করা উচিত যে এত মুসলমান কি আপনার চোখে সব হারাম কাজ করে থাকে? এত আলিম ওলামা সব কি ইসলামিক অনুসারে সব অবৈধ হয়ে গেছে? এটা কিন্তু একজন আলিমের ভাবনা চিন্তা হয় না একজন মুসলমানের ব্যাপারে। আলহামদুলিল্লাহ, মুসলিম শরীফে রয়েছে নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম যখন হিজরত করে মক্কা থেকে মদিনা তৈয়বা গেলেন, তো যখন মদিনার নিকটবর্তী হলেন, তো যারা অপেক্ষায় ছিলেন তারা নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা সাল্লামের সঙ্গে হয়ে মদিনার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। 10 জন মানুষ যদি একত্রিত হয়ে এগিয়ে যায়, এটাই তো জুলুস। সুবহানাল্লাহ। হযরতে বুরিদা আসলামী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দেখেন যে কোনো ঝান্ডা নাই, তো আপনার মাথায় একটা পাগড়ি ছিল, হ্যাঁ, পাগড়িটা খোলে হাতে যে একটা ছোরা বা বল্লম ছিল ওর উপরে লাগিয়ে ঝান্ডাটাকে উপর করে নিয়ে আসলো। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। ঠিক আছে। এবং মদিনার মধ্যে যারা ছিল তারা রাস্তায় ধারে দাঁড়িয়ে নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা সাল্লামের ব্যাপারে মানে আপনার প্রশংসায় বলে, তালা আল বদরু আলাইনা মিন সানিয়াতিল ওয়াদাই ওয়াজাবা শুকরু আলাইনা মা দা লিল্লাহি দাই। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। তো এটা বলা কি কোনো হাদিসে নাই, আমি পাইনি। ভাই আপনি যদি পাননি তো এর মানে কারণ এটা তো না কি আপনি একটা জিনিস একটা দলিল না পেলে সেটা অন্যও পাবে না কেউ। আপনি একটা জিনিসকে নাজাইজ বলবেন, আপনার কাছে দলিল নেই, আপনি পাননি, এই জন্য কেউ অন্য বড় মুহাদ্দিস রয়েছে তিনিও দলিল পাননি আর আপনি বললে নাজাইজ হয়ে যাবে। তো এটা একটা ভুল বুঝাবুঝি। দ্বিতীয়ত মৌলানা সাহেব সে বলেছেন যে এই ব্যাপারে যে কোনোখানে আমাদেরকে ডাকবে আমি যাব। তো দেখেন এই সময় তো আমরা শুধু একটা এলাকার মানুষের মধ্যে মুসলমানের মধ্যে একটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে দিয়েছিল, তারাও বলবে বোধহয় সে ঠিক বলেছে নাকি। তো এটা কিন্তু একেবারে তিনি মিথ্যা কথা বলেছেন। আমাদের কাছে দলিল সবকিছু এখন সম্ভব না কি আপনার সামনে সমস্ত দলিল আমি দেখাবো, কয়েক ঘন্টার দরকার। এতগুলো দলিল রয়েছে আলহামদুলিল্লাহ, দলিলের কিতাব যদি আমি রাখি তাহলে ও মলি সাহেবের চেহারা দেখা যাবে না ওখানে, সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। এতগুলো দলিল ঠিক হয়ে যাবে। তো এটা আমি আপনার আছে তানজিম ফালাহুল মুসলিমিন চোপড়া, আপনি আসেন, এলাকাবাসীর মানুষ থাকুক সুন্নি মুসলমান, আমরা বসে ডিসকাস করি, আপনি দলিল দিবেন আমিও দলিল দিব, তাহলে আম পাবলিক জানতে পারুক কি আসল জিনিসটা কি। আর যদি আপনি না আসেন, তাদের কাছে দলিল রয়েছে, তো আপনি যে আপনার দলের আলিম উলামা রয়েছেন তাদের সঙ্গে আপনি ডিসকাস করুন। আমি যদি ও সকল দলিল দিতে থাকি তাহলে কতগুলো দেওবন্দি আলিম নিজের কিতাবের মধ্যে লিখেছেন, নিজের বইয়ের মধ্যে জুলুসে মুহাম্মাদি জায়েজ, হ্যাঁ আছে। তো তানজিম ফালাহুল মুসলিমিন আর আমাদের এলাকাবাসীর তরফ থেকে আমি এটা আপনার চ্যানেলের মাধ্যমে সে মলি সাহেবকে জানাতে চাই যে ভাই বিভ্রান্তি করো না, শান্তি মতো থাকো, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইত্তেবা আর আপনার কথা মতো চলার জন্য মানুষকে আপনিও ডাক দিন। এরকম ভাবে হামলা করা চ্যানেলে এসে আর এরকম ভাবে একটা বিভ্রান্তি ছড়া, এটা কিন্তু ঠিক না। আপনার জন্য অনেক জায়গায় মানুষ মারামারি করছে, অনেক জায়গায় মানুষ হয়তো বাহেসা মোবাহেসা করছে, এই জন্য নিজেদের মধ্যে একটা বিভ্রান্তি ছুটে যাচ্ছে, এটা কিন্তু ঠিক না। আপনি ভুল বয়ান দিয়েছেন, আপনার বয়ানটাকে আমরা কন্ডেম করি। আর আপনি যদি আমাদের সঙ্গে বাহেসা মোবাহেসার ইচ্ছুক তাহলে আপনি আসুন বা আমাদেরকে ডাকুন, কোনো ভয়ের কোনো প্রয়োজন নাই। ইনশাআল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আমরা ওখানে গিয়ে জুলুসে মুহাম্মাদি সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের সবুতের উপরে আলহামদুলিল্লাহ 101টা দলিল। তো এখন আমাদের মুফতিয়ানে কেরাম রয়েছেন, এনার কাছে আপনি শুনুন। আমি তো বয়ান দিয়ে দিলাম বাংলায়, যেন যারা আমরা বাংলা জানে তারা আমার এই কথা শুনে রাবতাও করতে পারবেন, আমাদের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করতে পারবেন। তাদেরকে যদি দলিলের দরকার হয় ইনশাআল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তাদেরকে কোনো ফিকির মন চিন্তা করার কোনো দরকার নাই, এখান থেকে দলিল দেওয়া হবে। আর যে জিনিসটা 1400 বছর পর্যন্ত হয়ে থাকে এটাই তো বড় দলিল, সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। এটাই বড় দলিল। এত বড় আলিম ওলামা, আমাদেরকে আপনি মৌলী সাহেব কি মনে করেন আমরা যদি কিছু না জানতাম তাহলে আসতাম না এখানে মিডিয়ার সামনে দাঁড়িয়ে আপনাকে আপনার চ্যালেঞ্জটাকে কবুল করতাম না এবং আপনাকে চ্যালেঞ্জ করতাম না, ঠিক আছে। আলহামদুলিল্লাহ আপনি আমাদের কে একটা ডাক যদি দিয়েছেন, তো আমি আপনার ডাকটাকে সাড়া দিচ্ছি, আসুন ডিসকাস করি। আর যদি আপনি না আসেন তাহলে আপনি সমস্ত এলাকাবাসীর কাছে মাফি এবং ক্ষমা চান আপনি। আর
आने वाला टाइम में যেন এরকম আপনি কোন রকম বয়ান দিয়ে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্ত लोग यहाँ जमा हुए हैं, आप सबको मालूम है। ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में जिस मौलवी ने बहुत हफ़वात व बकवास किस्म के जुमले इस्तेमाल किए हैं, मैं उसकी निंदा करता हूँ, कंडम करता हूँ। ईद मिलादुन नबी अल्लाह तबारक व ताला की सुन्नत है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तमाम अम्बिया किराम, रसूलान एज़ाम, सहाबाए किराम, अइम्माए किराम, ताबईन, तब ताबईन, खुलफाए राशिदीन, अइम्माए मुज्तहिदीन की सुन्नत है ईद मिलादुन नबी। यानी 2-4 जुमले में मैंने तमाम दलाइल बयान कर दिए। तफसील का यहाँ मौका नहीं कि उसको खुल करके बयान किया जाए, तफसील के लिए वक्त दरकार है। उस दिन जो कुछ भी हुआ WB न्यूज़ एंकर के हवाले से या प्लेटफॉर्म के हवाले से बहुत गलत हुआ, जिससे तमाम अहले सुन्नत वल जमात दुखी हैं। जहाँ तक ये खबरें गई, हमारे तरफ तंजीम के उलमा के पास फ़ोन आ रहे हैं, इलाके के उलमा इम्मा के पास फ़ोन आ रहे हैं, बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। एक तरह की आग लगी हुई है अभी। बहरहाल हम मुस्बत तौर पर, पॉजिटिव तौर पर हम जवाब देना चाहते हैं। हम कोई वायलेंस या शरपसंदी करना नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को बुलाया गया है। खुलासा कलाम ये कि कुछ सवालात भी वहाँ गलत थे, जैसे ढोल बाजा। मैं आप लोगों के माध्यम से मैसेज देना चाहता हूं कि किस जुलूस में ढोल बाजा हुआ है। ये गोश्त बंटवारे का मसला कहां पैदा हुआ है, ये भोजपुरी गाना कहां इस्तेमाल किया गया है। इस तरीके के जुमले जो कसे गए हैं और मतलब कि जो वायरल किया गया है, ये सवालात बिल्कुल गलत है। और जब सवालात गलत है तो सवालात के जो जवाबात होंगे वो भी गलत। लेकिन उस मौलवी को समझना चाहिए कि हम जवाब सही तौर पर दें, लेकिन उन्होंने भी जिस तरीके से जवाबात दिए हैं, जिसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान हो गए, बहुत दुखी हैं। बात यह है कि जुलूस मोहम्मदी का कोई जवाब ये गैर इस्लामी है। गैर इस्लामी कहा है उसने, और हम डंके की चोट पर कहना चाहते हैं कि जिस दिन आमना सामना हो जाएगा हम बता देंगे। लाल बाजार में प्रोग्राम था कि शब बरात का रोजा रखना हराम है, इससे पहले उसने बोला था। मैं खुद वहां पहुंचा था, आज भी हमारी तकरीर यूट्यूब में मौजूद है। मैंने चैलेंज किया था कि तुम मिंबर रसूल पे खड़े होकर ऐसा बयान क्यों दिया कि शब बरात का रोजा रखना हराम है। फिर मैंने दलाइल फराहम की, आज तक कोई रिप्लाई, कोई जवाब नहीं। तो ये सिर्फ माहौल को गरमाना, शरपसंदी दिखाना, ये उसका काम है, ये उसका पेशा है। और वो तो कोई इस्लामिक स्कॉलर भी नहीं है। ये सब सवालात पूछे जाते इस्लामिक स्कॉलर से। इतना नाजुक मसला है, जिस मसले पर 1400 साल से लोगों का इजमा है, लोग ईद मिलादुन नबी मना रहे हैं, उस पर आप टिप्पणी करेंगे तो ऐसे इस्लामी, आप लोगों से भी मैं कहना चाहूंगा कि आप ये सब सवालात किसी इस्लामी स्कॉलर से पूछे। अरे गैर नत्थु खैरे से आप पूछते हैं कि ये जायज है कि नाजायज है। हर कोई मुंशी आपको जवाब देता फिरेगा, लेकिन सवाल और जवाब तो कुछ नहीं होगा, और उल्टी मतलब कि ये बदनस्बी पैदा होती रहेगी। मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने जवाब दिया कि कुरान और हदीस और सिहाह सित्ता, उलमा, अइम्मा, फुकाहा कहीं से भी साबित नहीं है। हमारे मुफ्ती अहमद रजा साहब ने कुछ जवाबात दिए हैं, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जायज काम के लिए दलील की जरूरत नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। आप ज़ाब्ता समझें, जायज काम के लिए दलील की जरूरत ही नहीं है। कुरान मुकद्दस में अल्लाह तबारक व तआला ने हराम औरतों की लिस्ट मुतय्यन कर दी। माँ के साथ निकाह हराम, बेटी के साथ निकाह हराम, फूफी के साथ निकाह हराम, खाला के साथ निकाह हराम। लेकिन जब जायज की लिस्ट बताना मकसूद हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया उहिल्ल लकुम मा वरा ज़ालिकुम, इसके अलावा जितनी औरतें हैं तुम्हारे लिए हलाल। तो जायज काम के लिए दलील की तो जरूरत ही नहीं है। और दलाइल सिर्फ कुरान और हदीस नहीं, दलाइल तो 4 है, कुरान, सुन्ना, इजमा, कयास। क्या उस मौलवी ने नहीं पढ़ा है कि दलाइल 4 है? जब दलाइल 4 है तो चारों से जायजा लेना चाहिए। सिर्फ कुरान और सुन्नत का हवाला क्यों दिया तुमने? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उनका सामना करने के लिए पुरजोश हैं, हम तैयार हैं। जब भी वो वक्त देंगे इंशाअल्लाह हम हाजिर रहेंगे और उनके सवालात के जवाबात भी देंगे, दूध का दूध पानी भी पानी कर देंगे। और ये पता चल जाएगा
कि हक पर कौन है, बातिल पर कौन है। मैं आपके थ्रू, आपके चैनल के थ्रू, आपके माध्यम से मैं दुनिया वाले को ये मैसेज देना चाहता हूं कि जुलूस मोहम्मदी पर ये टिप्पणी ये सरासर नाजायज और हराम है, और आपके सवालात और जवाबात के जो ये तौर तरीके हैं ये भी बहुत गलत थे। बल्कि ये सब इस्लामी स्कॉलर से पूछे जाते हैं, जो स्पेशलिस्ट है वही इसके जवाबात देंगे। और साथ साथ किसी काम में बदनज़मी, अब एक जामे मस्जिद है तंजीम फलाहुल मुस्लिमीन की, यहाँ अगर कोई शराबी शराब की बोतल लेकर के अंदर चला जाए और शराब पी जाए तो क्या प्रशासन इसमें ताला डाल देगी? शराबी को बाहर निकालो, उस पर मतलब कि एफआईआर दर्ज करो, उसके ऊपर मतलब कि जुर्म सजा करो। तो कहीं भी गलत काम हो, हम मानते हैं कि हमारी महफिलों में भी कुछ बदनज़मी हो जाए तो हम रोकथाम की कोशिश करते हैं, प्रशासन भी इस सिलसिले में कोशिश करते हैं। उस दिन तंजीम फलाहुल मुस्लिमीन के हमारे जुलूस में प्रशासन के मौजूद रहने का सवाल क्यों उठा? मौजूद क्यों था? सिर्फ इस वजह से था कि कोई बदनज़मी ना हो, कोई खुराफात ना हो, कोई खराबी ना हो, कोई डिसिप्लिन सही तौर पर मेंटेन हम करें, इसके लिए तो प्रशासन मौजूद थे। इसकी रोकथाम की कोशिश प्रशासन की तरफ से भी होती है, तंजीम की तरफ से भी होती है, मस्जिद मदरसों की तरफ से भी होती है। लेकिन अगर हो जाए तो पूरा जुलूस नाजायज और हराम कैसे हो जाएगा? उस काम को रोको। ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी जिम्मेदारी है, उलमा की भी जिम्मेदारी है, प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, एडमिनिस्ट्रेशन की भी जिम्मेदारी है। लेकिन सरासर आप कहेंगे कि जुलूस हराम है, ईद मिलादुन नबी हराम है, ये बहुत ही गलत है। हम उसके बयान की फिर निंदा करते हैं, कंडम करते हैं। हम आपके थ्रू उनका जो चैलेंज है कि अगर किसी के पास जवाब है तो हमें जवाब दीजिए, हम जवाब देने को तैयार हैं। हम तंजीम फलाहुल मुस्लिमीन के जिम्मेदार उलमा मौजूद हैं, इनको कहेंगे कि नेक्स्ट टाइम निकाल करके, टाइम फिक्स करके उलमा को दावत दे और उनको भी दावत दे, फिर हम बैठेंगे और फिर आप लोगों के हवाले भी मतलब कि ये मैसेज दुनिया वालों तक पहुंचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। हमारे दो मुफ्तियान किराम ने जो बयानात दिए, मैं तंजीम फलाहुल मुस्लिमीन चोपड़ा और जामिया गौसिया की तरफ से बहैसियत ज़िम्मेदार उसकी तायीद करता हूँ। और चूँकि उस मौलवी से फ़ोन पर मेरी बातचीत हुई थी, जो ऑडियो वायरल हो रहा है, उसने फ़ोन पर जो भी बातें कही, दलील का मुतालबा किया। मैंने उससे कहा था कि इतनी दलीलें हमारे पास है कि तुम यहाँ से हवास बाख्ता हो जाओगे, उठकर तुम बैठ नहीं पाओगे। यकीनन मुफ्तियान किराम ने बताया, और इतनी दलीलें हैं जुलूस मोहम्मदी या मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से, कुरान व अहादीस, अक़वाल फ़ुक़हा, उलमा, अइम्मा, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, यहाँ बेशुमार दलीलें मौजूद है। मुस्लिम शरीफ की हदीस अभी मुफ्ती साहब ने पेश की। इंशाअल्लाह अरबी इबारतों के साथ हमने उसको कहा था कि तुम या तो हमें बुलाओ, या तुम हमारे पास आओ, या तुमको डर लगता है तो थाने में आओ, या एमएलए साहब के यहाँ बैठो, मतलब जहाँ तुमको लगे कि मैं सेफ हूँ। हम लोग हर जगह जाने के लिए तैयार हैं, और तुम्हारी हर बात, हर सवाल की दलील हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में मौजूद है। चूँकि अब उस मुख्तसर वक्त में दलीलें वाफिर अंदाज में देना ये मुनासिब नहीं है। उसके बावजूद भी मुख्तसर अंदाज में हमारे मुफ्तियान किराम ने दिया। मैं इल्ज़ामी तौर पर उनसे, उस मौलवी को ये बताना चाहता हूँ अवाम के लिए, जो अवाम उसकी वीडियो को देखकर उसका इंतशार है, मैं कहता हूँ कि रबीउल अव्वल का जुलूस में क्या होता है, लोग झंडा लेके निकलते हैं, जिसका सबूत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से मुफ्ती साहब ने दिया। एक झंडा होता है हाथ में, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह का नारा लगाते हुए हम गुजरते हैं। उसके बाद फिर कुरान की तिलावत होती है, तबर्रुकात तकसीम होते हैं। इन सारी चीज़ों को, जैसा कि मुफ्ती साहब ने बताया कि जायज़ उमूर के लिए दलील की ज़रूरत नहीं, जो नाजायज़ साबित करे उस पर दलील है कि तुम नाजायज़ कैसे साबित कर रहे हो। मैं ये कहना चाहूँगा कि रबीउल अव्वल का जुलूस हराम है, लेकिन उन लोगों का सबसे बड़ा मदरसा, पूरे एशिया का सबसे बड़ा मदरसा दारुल उलूम देवबंद, जो सहारनपुर यूपी में है, अभी 15 अगस्त के दिन में उसके सदर दरवाजे पे हिंदुस्तान का झंडा लहराया। हम भी लहराए,
हम भी मुल्क से मोहब्बत करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क का झंडा घर घर में लहरे, लेकिन रबीउल अव्वल का झंडा लगाना हराम है, लेकिन वो झंडा जो तुम लगाए 15 अगस्त को, उसको भी कुरान से हदीस से साबित करो। और रबीउल अव्वल के 15 अगस्त के दिन में पूरे सहारनपुर में 10,000 से ज्यादा सहारनपुर दारुल देवबंद के बच्चे और मौलवियों ने 15 अगस्त का जुलूस निकाला। तो रबीउल अव्वल का जुलूस कुरान और हदीस में चाहिए, हालांकि है। तो हमारा मुतालबा उस मौलवी से ये है कि तुम 15 अगस्त का जुलूस कुरान और हदीस से दिखाओ। तो अब मैं, चूंकि बातें हमने उसको कहा था कि तुम आओ या हमें बुलाओ, इतवार तक का टाइम मैंने दिया था तंजीम की तरफ से। आज फिर आपके माध्यम से हम उसको इतवार तक का टाइम देते हैं कि आप इतवार को अपने सारे उलमा को, जो तुम्हारे मसलक के उलमा है, सबको लेकर आओ। तुम आओ या हमको बुलाओ, हम हर हाल में तैयार हैं। थाने में आओ, एमएलए साहब के आओ, या तुम जहां सेफ अपने आप को समझो वहां बुलाओ, हम हर जगह जाने के लिए तैयार है। अगर वो नहीं आता है तो हम मीडिया के जरिए उसके सवालों का मुदल्लल जवाब इतवार से पहले हम उसको देंगे। और दूसरी बात कि इस वक्त ब्लॉक में नौजवानों और मुसलमानों में काफी गर्मजोशी है, किसी के भी जज्बात को आप ठेस पहुंचाएंगे तो उसको तकलीफ होगी। तो इसलिए मैं ब्लॉक के हमारे सुन्नी भाइयों से कहूंगा कि तुम किसी तरह का वायलेंस मत फैलाओ, शांति से रहो। उसके हर सवाल का जवाब हमारे पास है, ऐसी बात नहीं है। उसके बकवास, खुराफात और उसकी इबलीसी बयान का हर तरह का हमारे पास दीनी, इस्लामी, शरीयत के हिसाब से, कुरान और हदीस के हिसाब से जवाब मौजूद है। अगर वो नहीं आता है तो हम सोशल मीडिया के जरिए उसका जवाब देंगे। और ब्लॉक में शांति के लिए और आइंदा इस तरह की कोई खुराफात ना कर सके वो, इसके लिए हम थाने में भी इसकी इत्तला देकर रखेंगे कि वो आदमी इस तरह का बयान देकर ब्लॉक में आपस की भाईचारगी को बर्बाद करना चाहता है। प्रशासन की भी जिम्मेदारी होगी कि ऐसे गलत लोगों को कंट्रोल करे। बस इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपने ब्लॉक के सारे मुसलमानों को मैं पैगाम देना चाहता हूं कि आप शांति का माहौल बनाकर रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आप लोगों को मालूम है कि हम यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए हैं। जैसा कि बात हुई कि एक मौलवी ज़ैनुल हक है, इसने जो नामुनासिब जुमले कहे और इन्होंने जो जुलूस मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से और ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से गलत बयानात दिए, हम इनका जो है कंडम करते हैं और तहे दिल से जो है हम इसकी मजम्मत करते हैं। हजरात, इस मौलवी के जुमले से पता चलता है कि इस मौलवी को कुरानो अहादीस से कोई वास्ता नहीं, दीनी तालीम से कोई मतलब नहीं। हालांकि उलमाए किराम बयान करते रहते हैं किताबों के हवाले से। उलमाए किराम के पास किताबों के मज़ामीन भरे पड़े हैं। अभी अभी मुफ्तियान किराम ने बताया हवाले के साथ कि जुलूस मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मनाना कैसा है। ये जुलूस सिर्फ आज हम ही नहीं मनाते हैं, बल्कि 1400 साल से लेकर अब तक ये जुलूस चला आ रहा है। ये कोई नई बिदअत वाली चीज नहीं है, बल्कि ये पुरानी चीज है। हम तो सहाबाई किराम
रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन की सुन्नत को अदा कर रहे हैं। हम तो ताबीन इज़ाम और बुजुर्गान दीन के अक़वाल पर अमल करते हुए हम जुलूस मनाया करते हैं। हजरात मोहतरम, देखिए जुलूस में क्या होता है, हम जो है अपने हाथों में झंडे लिया करते हैं, नाराए तकबीर और नाराए रिसालत की कसरत किया करते हैं, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुकद्दसा में दुरूद व सलाम की कसरत किया करते हैं। क्या ये अफ़आल नाजायज़ हैं? क्या ये हराम हैं? अगर है तो वो दलील दे हजरात। तो कभी भी वो जो है इसकी हुर्मत पर दलील नहीं दे सकता कि ये चीजें हराम हैं। हालांकि जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मनाना ये जो है ईमान की अलामत है और ये सुन्नियत की अलामत है। लिहाजा जिस मौलवी ने जुलूस मोहम्मदी के हवाले से गलत बयानात दिए, उस मौलवी को अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बारगाह में तौबा करनी चाहिए और उलमाए किराम के दिलों को जो उसने ठेस पहुंचाया है, उलमाए किराम से माफी मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबों को शरीयत मुतहरा पर अमल पैरा होने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।